So today we are going to discuss another topic that will be ASP.NET Core Request Processing Pipeline। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन को। आइए चलते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया इन द प्रीवियस वीडियोस। कॉन्सेप्ट हमें क्या करना होता है, अपने कॉन्फ़िगर मेथड को जो हमारे पास स्टार्टअप क्लास के अंदर है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यानी मैं इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उस प्रैक्टिकल में व्हाट वी विल बी डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी modifying the configure method of our startup class, और we will be registering 3 middleware components। तो हम request processing pipeline के अंदर क्या करेंगे, 3 middleware components को जो है वो रजिस्टर करेंगे। द फर्स्ट टू कंपोनेंट्स विल बी यूजिंग द यूज एक्सटेंशन मेथड। जो आपके फर्स्ट दो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, यूज एक्सटेंशन मेथड को यूज करेंगे, और लास्ट वन जो है वो रन एक्सटेंशन मेथड को यहाँ पर यूज करेगा। Let's move to the project and add these method, and then we will discuss what here we are trying to achieve. We were using the same project that we have discussed in the last lecture, but here we will be modifying the slight changes. So first of all, you can see here I have two methods। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक यूज डिफाइन किया हुआ है और एक रन जो है वो कॉल किया हुआ है। मैं अनदर यहाँ पर जो है वो यूज को डिफाइन कर देता हूँ। सो लेट्स सी। So here I am going to call another use। So you can see I have added three components, three middleware components in the startup class, but we are going to add some another code here। So first of all, what I am going to add here, I will be using an logger कंपोनेंट। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैं लॉगर कंपोनेंट को यूज़ करूँगा, और उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर आकर ये जब मेथड को मैंने डिफाइन किया है तो यहाँ पर आई विल बी यूजिंग अ क्लास दैट इज आई लॉगर एंड आई लॉगर स्टार्टअप, or here creates an object of logger। Okay, so here we will be using the microsoft.extension.login। ठीक है। यहाँ पर ये extension हम यूज कर रहे हैं that is logger, और what we are gonna do in the first method, ये जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ से logger के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए log information get करेंगे। So here we have log information, and what we are gonna type, we will write middleware 1, that is the incoming request। So here we have typed incoming request of the middleware 1। हमने ये इंफॉर्मेशन जो है वो लॉग की है। तो लॉग का मतलब यानी रिस्पॉन्स का मतलब क्या था कि हम जो है ब्राउज़र पे ये एप्लीकेशन मतलब ये कोड सेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ से जो है हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये कहाँ पर लॉग करवाई है, लॉगर में लॉग इन्फॉर्मेशन लॉग करवाई है। तो इसका रिजल्ट हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखेगा, we will discuss again, or then we are going to call the await.next, and after that what I am going to do, I am again logging the information, but here I will be seeing in the message I will be typing the outgoing request। as we have discussed, we can मतलब आपके पास जो मिडिलवेयर कंपोनेंट्स हैं वो दोनों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, लाइक इनकमिंग रिक्वेस्ट को भी और आउटगोइंग को। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है logger डॉट लॉग इन्फॉर्मेशन मिडिलवेयर 1 इनकमिंग रिक्वेस्ट, और दिस विल बी मिडिलवेयर 1 outgoing request। Now same code I will be doing in the next middleware component। here I will be doing the same, but here I will change it to 2, and here also 2। now in the run method, I am also going to write something
So here on the request 2, I will change it to middleware 3. So this is the middleware 3, and what I am going to do, I am let's type it correctly. Let's say handled and response generated, response generated. So this is the response generated, and then this is we have pass in the response, ठीक है. So ये हमने किस पे पास किया, response में. और सेम जो लाइन है यानी सेम कोड जो है वो हम लॉगर में भी इनपुट करवा देते हैं. So let's call this again. Here I will be typing this again line, this same line in the log. So here I will type. So this is the code that we have modified in this startup class. So what we have do, if we going to code को अगर हम explain करना चाहें, so हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने inject किया है login middleware को, that is ilogger startup into the configure method. यानी आप देख सकते हैं कि first of all configure method के अंदर हमने जो है inject किया है किसको, ये iLogger startup आपके पास मिडलवेयर को, ठीक है. द क्रिएट डिफॉल्ट बिल्डर मेथड ऑफ द प्रोग्राम क्लास विच इज कॉल्ड बाय द मेन मेथड कॉन्फ़िगर्स द लॉगिन एज ASP.NET कोर इज ओपन सोर्स. तो आपके पास, क्योंकि आपके पास ASP.NET कोर जो है क्या है, आपके पास ओपन सोर्स है, तो आप इसको जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके पास जो है ये जो लॉगिन है, ठीक है, ये किस तरह से कॉल हो रहा है और इसके अंदर क्या क्या हमारे पास जो है कॉन्फ़िगर लॉगिन जो होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मेथड्स जो होते हैं वो डिफाइन हो सकते हैं, जो हमारे पास डिफाइन होते हैं, ठीक है. सो आप यहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं. तो जैसे ही हमने इसको इंजेक्ट किया यहाँ पर, तो इसकी मदद से हमने इंफॉर्मेशन को लॉग किया है, ठीक है. यानी हम क्या करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हम लॉग करके कहाँ पर शो करना चाहते हैं, हम कंसोल में शो करना चाहते हैं. यानी जब मैं इस एप्लीकेशन को CLI से यूज़ करूँगा, सो CLI से जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये हमें कहाँ पर दिखेगा. तो मैं यहाँ से अगर टर्मिनल में जाता हूँ, ठीक है, सो नॉट इन दी, सो दिस इज आवर टर्मिनल, ठीक है. सो ये जो आउटपुट विंडो है, ठीक है, यानी मैं टर्मिनल की जो विंडो है यहाँ पर ही आपके पास आपको ये रिजल्ट शो हो जाएगा. जबकि अगर आप ये सेम कोड रन करेंगे विजुअल स्टूडियो से, यानी विजुअल स्टूडियो 2017 से रन करेंगे, तो वहाँ पर आपके पास एक आउटपुट विंडो होती है, जो आपके पास ये जो लॉग इन्फॉर्मेशन वाला मेथड है उसके अंदर जो हमने टाइप किया है वो सारा रिजल्ट आपको वहाँ पर दिख जाएगा. सो लेट्स सो यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को अगेन बिल्ड करते हैं. लेट मी क्लियर दिस. सो हेयर आई एम गोइंग टू टाइप .NET run and then let's type it .NET run. सो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट पे चला गया है, यानी हमारे पास बिल्ड हो गया है. अब इसको हम रन कर सकते हैं. तो जैसे ही मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन करूँगा, सो यू कैन सी हियर, ठीक है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या हुआ. सबसे पहले मिडलवेयर 1 की इनकमिंग रिक्वेस्ट जनरेट हुई. देन आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास मिडलवेयर 2 की जो है वो यहाँ से इनकमिंग रिक्वेस्ट जनरेट हुई. फिर आपके पास मिडलवेयर 3 की इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल हुई, उसका रेस्पॉन्स जनरेट हुआ. और आप ये देख सकते हैं ब्राउज़र पे भी सेम आपके पास रेस्पॉन्स जो है यहाँ से जनरेट हो गया. देन आपके पास मिडलवेयर 2 से आउटगोइंग रिक्वेस्ट जनरेट हुई और फिर आपके पास मिडलवेयर 1 से आउटगोइंग रिक्वेस्ट जनरेट हुई. सो आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से प्रोसेस हुई, किस तरह से उसने स्विच किया फ्रॉम वन मिडलवेयर कंपोनेंट टू अनदर मिडलवेयर कंपोनेंट्स. तो ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट मिडलवेयर कंपोनेंट्स यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं. और किस ऑर्डर में रजिस्टर करवाने हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट कराना है और किस तरह से 1 से सेकंड आपके पास जो है, आपके पास सेकंड जो है रिक्वेस्ट आपके पास उसमें किस तरह से जंप करना है, किस तरह से स्विच करना है. सो वो भी अभी हमने करके देखा. So now we are going to discuss the
कोर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन एग्जीक्यूशन ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने करके भी देखा कि आपके पास एग्जीक्यूशन क्या थी। तो अगर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रिक्वेस्ट गई और मिडिलवेयर आपके पास कंपोनेंट, उधर आपने कुछ लॉजिक लिखी थी, यानी हमने क्या लिखा था, लॉग डॉट जो है लॉग इन्फॉर्मेशन का मेथड कॉल किया था। उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट कॉल किया था। जैसे ही ये नेक्स्ट कॉल हुआ तो आपके पास सेकंड मिडिलवेयर के पास गया, उसकी लॉजिक यहाँ पर रन हुई और देन आपके पास ये नेक्स्ट रन हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट ने आपको कहाँ पर मूव करवा दिया, मिडिलवेयर 3 कंपोनेंट के पास। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोई भी काम किया, जैसे ही वो प्रोसेस हुआ देन आप अगेन यहाँ पर आए, और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो हो सकता है आपने यहाँ पर भी कुछ लॉजिक्स लिखी हो, यानी आप जब मिडिलवेयर 3 से जंप करते हैं मिडिलवेयर 2 पे एज अ रिस्पॉन्स, तो आप यहाँ से भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, यहाँ पर भी कोई काम कर सकते हैं। देन भी आपके पास फाइनली आप इधर आए और फाइनली आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो गया। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको कौन-कौन से पॉइंट्स को जो है रिमेंबर करना है। सो जिस तरह से अभी हमने देखा कि आपके पास मिडिलवेयर 1 से हमारे पास इनकमिंग रिक्वेस्ट गई, फिर आपके पास मिडिलवेयर 2 के पास गई, ठीक है? तो फिर मिडिलवेयर 3 जनरेट हुआ और देन आपके पास जो है आउटगोइंग रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हुआ थ्रू दी सेकंड मिडिलवेयर 2, फिर आपके पास मिडिलवेयर 1, ठीक है? So now we are going to discuss the some important points that we have to remember. So first of all, जो आपके पास रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन होती है वो उसके अंदर वो जो है सीक्वेंस ऑफ मिडिलवेयर कंपोनेंट्स जो है उसके ऊपर कंसिस्ट होती है, जो कि वन आफ्टर अनदर जो है वो कॉल होते हैं। ईच मिडिलवेयर कंपोनेंट कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन बिफोर एंड आफ्टर इन्वोकिंग द नेक्स्ट कंपोनेंट यूजिंग द नेक्स्ट डेलीगेट। तो जिस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो आपके पास मिडिलवेयर कंपोनेंट है वो बिफोर सम ऑपरेशन, यानी आपके पास स्विच करने से पहले, ठीक है, तो स्विच करने से पहले भी कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है, और आपके पास जो है इन्वोक नेक्स्ट कंपोनेंट को इन्वोक करने के बाद भी जो है वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो अ मिडलवेयर कंपोनेंट कैन आल्सो डिसाइड, तो इस तरह से हमने पहले से डिस्कस किया है कि मिडलवेयर कंपोनेंट जो है वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि हमें नेक्स्ट मिडलवेयर कंपोनेंट को कॉल करना है नहीं करना। अगर नहीं करते तो दिस विल बी कॉल्ड द शॉर्ट सर्किटिंग द रिक्वेस्ट पाइपलाइन। द मिडलवेयर कंपोनेंट इन ASP.NET Core हैज एक्सेस टू बोथ द इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड द आउटगोइंग रिस्पॉन्स। और जिस तरह से अभी हमने डिस्कस भी किया है थ्रू आउट दिस रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन टॉपिक के, हमारे पास मिडिलवेयर कंपोनेंट्स जो है उनके पास दोनों इनकमिंग रिक्वेस्ट और आउटगोइंग रिस्पॉन्स का जो है वो आपके पास एक्सेस होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कीप इन माइंड रखना है कि आपके पास जो ऑर्डर होता है मिडिलवेयर कंपोनेंट्स का कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर, जो आप स्टार्टअप क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, वो आप उसी ऑर्डर में डिफाइन करें जिस तरह से आपको मिडिलवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है? As we know, define the order in which these middleware components are going to be invoked on request and the reverse order for the response. So the order is critical for defining the security, performance and functionality of the application. तो आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और फंक्शनैलिटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल है कि आप सही ऑर्डर जो है वो मिडिलवेयर कंपोनेंट्स का डिफाइन करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये मिडिलवेयर कंपोनेंट कॉल होगा, देन दिस एंड देन दिस। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द order in which you are going to call the middleware components. So today आज के लेक्चर में हमने जो है इन सारी चीज़ों को, यानी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन को समझने की कोशिश करी। साथ के साथ हमने एक प्रैक्टिकल करके भी ट्राई करी कि हम इसको बेहतर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।